discuss the question of shift 1, 25th Feb. There is one question in that paper that is based on molybdenum oxide reacting with a compound which is 2-methyl, and there is 2 position methyl, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexane, 7 carbon compound is given, and molybdenum oxide is going to react with it. Now this question is from the aromatization reaction of your hydrocarbons chapter. Now in this question, बेटा आपके पास when I say if there is a 6 carbon, अगर आपके पास सिर्फ हेक्सेन होता तो हेक्सेन में आपके पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स यानी CH3 और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन्स होते यानी CH3. अगर आप molybdenum ऑक्साइड डालते हो तो H2 is being removed, तो आप कहते थे यहाँ पे हेक्सेन बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन. तो आप कहते हो डिहाइड्रोजिनेशन टेकिंग प्लेस. तो डिहाइड्रोजिनेशन के लिए जो रिएजेंट हमारे पास है वो है molybdenum oxide which can remove hydrogen, and there is possibility of a bond between 2 carbons. In this case, when I say there are 6 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 और 6 इन दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बनेगा. तो आप कहोगे यहाँ पे एक बॉन्ड बना, तो आप इस कंपाउंड में आप यहाँ पे कैसे सोच सकते थे. अब हमें जो गिवन है उसको देख लेते हैं. हमें गिवन था एक ब्रांच कंपाउंड, और उस ब्रांच कंपाउंड में आपके पास 1 और 6 के बीच में आप लिंकेज लेके आते हो, तो ये आपका 1 और 6 का लिंकेज, और यहाँ पे एक मिथाइल अटैच्ड है. Now again we are going to remove hydrogen because temperature is very high here. तो आपने 773 केल्विन यानी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन्स हैं जिनको आप अभी भी रिमूव कर सकते थे. तो यहाँ से फिर से हाइड्रोजन निकाल देते हैं. 1 more hydrogen is removed from here and we get a conjugated system formed out here. ये CH3 को हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा toluene. So now in this case we are going to get a product which is named as toluene. तो आपका आंसर आना चाहिए था toluene. Molybdenum oxide is going to give us toluene out here. Right? Now let's move on to the next question. Next question is about cyanides, यानी nitriles का question था. Very important concept. CH3CN on acidic hydrolysis. तो बेटा ये आप सबने याद किया था बहुत अच्छे से कि साइनाइड्स जो हैं अगर आप उनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड इज गोइंग टू गिव अस CH3COOH. So we get ethanoic acid formed over there. Now this ethanoic acid when react with SOCl2, बेटा SOCl2 it is a chlorinating agent. हमें पता है ये SOCl2 इस OH को हटा के क्या लगा सकता है, क्लोरीन. We get CH3COCl. It means acid chloride is possible. After getting acid chloride, now we are having hydrogen palladium barium sulfate. This reducing agent is called Rosenmund's reducing agent. So we can say that is Rosenmund's reduction. अगर आपके पास ये Rosenmund's reduction है, तो acid chloride is reduced with Rosenmund's reducing agent, leading to the formation of aldehyde. So acid chloride giving us aldehyde. It means this question is from the chapter carboxylic acid and aldehyde. तो carbonyl compound में से ये question आपको मिला, and we get answer CH3CHO. It means your answer should be first. Next question. Which of the following will not yield acetaldehyde? Acetaldehyde. What is acetaldehyde? It is CH3CHO. Again same chapter में से एक और question आ रहा है. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो एसिटाल्डिहाइड नहीं दे सकता है. तो बेटा साइनाइड्स ऑन रिडक्शन विद डाइबेल H. एनसीईआरटी क्वेश्चन है. डाइबेल H is diisobutyl aluminium hydride. It is a mild reducing agent which can convert CH3CN into CH3CHO. तो ये रिएजेंट तो आपको CH3CHO दे सकता था. एसिटाल्डिहाइड is formed. This is CH3CH2OH. यानी second option मेरे पास है ethanol with copper and heat. But copper here is going to act as dehydrogenating agent. तो आप कहते हो copper यहाँ पे क्या कर सकता है, ये dehydrogenation करता है, यानी it has tendency to remove hydrogens. अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दूं
तो आपके पास बन जाएगा CH2CHO. तो now we can say that here again dehydrogenation CH3CHO is formed. नेक्स्ट में आपके पास अगर हम कहते हैं CH3CH2OH क्रोमियम ऑक्साइड, बेटे क्रोमियम ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड मींस एसिडिक मीडियम, now it will act as a strong oxidizing agent और ये अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बना सकता था, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ आपके पास एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल नहीं बन रहा था, ये हमारा आंसर बनना चाहिए. अब इथीन में आपने ऑक्सीजन डाला है विद पैलेडियम, इस रिएक्शन में पैलेडियम 2 पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे आपके पास पैलेडियम यूज्ड इज 2 पॉजिटिव. अगर मैं पैलेडियम की रिडक्शन कर दूं तो इथीन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, एंड इथीन ऑन ऑक्सीडेशन हियर is leading to ethanol formation plus palladium as a metal is formed. तो ये हमारे पास था ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, इसमें भी इथेनॉल बन जाएगा. इट मींस आंसर मस्ट बी, किसमें नहीं बन सकता, हमें पूछा विल नॉट यील्ड, तो आंसर शुड बी 3. तो आपके पास थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज कंटेन्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में ये एक डाइसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में इसमें क्वेश्चन आ रहा है. तो लैक्टोज में आप कह सकते हो जब लैक्टोज व्हिच इज मिल्क शुगर, तो आपके पास आपने इसको मिल्क शुगर के नाम से पढ़ा था. When I say lactose is a milk sugar, it is made up of, बेटा this is the only sugar जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज 2 मोनोमर्स आ गए और दोनों ही क्या होते हैं, बीटा फॉर्म्स, यानी बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज आर देयर. अब दोनों बीटा है और दोनों ही डी फॉर्म्स है, बीटा डी एंड इट इज अगेन बीटा डी. जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो गैलेक्टोज में आपके पास फर्स्ट कार्बन ऑफ गैलेक्टोज, यानी यहां से फर्स्ट कार्बन आपने लेना है गैलेक्टोज का और ये मैंने इसकी बीटा फॉर्म बना दी. और ग्लूकोज भी आपने क्या लेना है, अगेन बीटा ग्लूकोज, तो ये मेरे पास बीटा ग्लूकोज है, इसमें भी OH एंड H. अब फोर्थ कार्बन 1 एंड दिस इज फोर्थ, दिस इज 1 एंड फोर्थ. अब आपके पास गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों का कौन कौन सा कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप कहोगे कार्बन इन्वॉल्व इज 1 एंड 4. 1 किसका है, गैलेक्टोज का, और 4 किसका है, ग्लूकोज का. तो लिंकेज इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 4 एंड 1. तो आप कहते हैं 4 किसका है, ग्लूकोज का 4 और गैलेक्टोज का 1 कार्बन, वहां लिंकेज बना सकता था. Now question number 5 here is about environmental chemistry. Statement 1 is given about allotrop of oxygen and reducing smog, and 1 is photochemical smog. पहले बेटा reducing smog is also named as London smog, or we can say it is named as classical smog. अब reducing nature किसकी वजह से है smog की, वो है because of sulfur dioxide. तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जिसकी वजह से रिड्यूसिंग बाय नेचर होती है. और इस स्मॉग में हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन यानी डस्ट पार्टिकल्स में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ब्राउनिश से कलर की हेजी सा कलर आ जाता है, तो आपके तो ब्राउन सा रीजन. फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो समर्स में बनती है. जब हम कहते हैं समर्स में अगर स्मॉग बन रही है तो वो फोटोकेमिकल है, और सनलाइट की प्रेजेंस में दिन में ये नजर आ रही है तो सनलाइट इज देयर. एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो आप कहते हो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वहां पे जरूर होंगे. और इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो भी वहां प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से स्मॉग जो है ब्राउन सा हेज बन जाता है सिटीज के सराउंडिंग्स में. तो आप इसे बोलते हो लॉस एंजल्स स्मॉग, इसको हम LA स्मॉग भी बोलते हैं. तो आपको ये सब रिवाइज कर लेना चाहिए था, यानी अगर आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो अब नेक्स्ट शिफ्ट में ध्यान रखोगे, इसमें से भी एक क्वेश्चन तो आना ही. इट्स अ स्मॉल चैप्टर इन NCERT, वेरी स्मॉल बेसिक चैप्टर, और उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो यू मस्ट बी केयरफुल. बेटा क्वेश्चन इजी या डिफिकल्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देके जाएगा और डिफिकल्ट भी. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो इजी है वो तो आपका ठीक हो ही जाए. डिफिकल्ट आप कितनी भी मेहनत करते हो, डिफिकल्ट में फिर भी चांसेस हैं कि आप कहीं अटक जाओ, लेकिन इजी क्वेश्चन तो हो ही रहा था. अब बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट
वहां ऑक्सीजन तो नहीं रिस्पॉन्सिबल थी, तो आपने कहा रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में सल्फर नहीं था, तो इसकी वजह से इसको अगर काट दो तो ठीक हो जाता, लेकिन ये तो है, इसका दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। तो वी कैन से दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी फॉल्स हियर, वी विल गेट द आंसर 4. Next question is about sodium bicarbonate test. Sodium bicarbonate test कौन देते हैं? These are the acidic compounds. Those can liberate carbon dioxide when react with sodium bicarbonate. That is called sodium bicarbonate test. यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं RCOOH, इनमें अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो तो ये आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस देंगे। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपसे कह रही हूं कि RCOONA बनेगा, राइट? देन यू हैव वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कम एज ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की क्या है? केमिस्ट्री। अब एसिड कैन गिव दिस टेस्ट, ये तो मुझे समझ आ गया। अब क्वेश्चन अराइजेस, क्या फिनोल ये टेस्ट दे पाएगा? तो एक ये फिनोल है मेरे पास, अगर प्योर फिनोल होता, सिंपल फिनोल, तो आपके पास ये टेस्ट नहीं होगा, दिस विल नॉट बी शोन। लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है तो आपके पास बन गया ट्राई नाइट्रोफिनोल विच इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। अगर हम पिक्रिक एसिड की बात करें तो बेटे पिक्रिक एसिड में आपके पास इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, विनेगर से स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। अगर विनेगर जैसे किसी एसिड की बात चल रही है तो डेफिनेटली दिस कैन आल्सो गिव दिस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब एनिलीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनेगा क्योंकि वो तो लोन पेयर दे सकता है। अब पोजीशन भी कैसी है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर ये लोन पेयर दे रहा है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, यानी ये फिनोल से भी वीक है, तो ये आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो आंसर शुड बी 2 and 3। तो आप कहोगे दिस शुड बी द करेक्ट आंसर आउट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following reaction para-aminoazobenzene is not formed? para-aminoazobenzene होता क्या है? आपको याद होगा कपलिंग रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट, और जब एनिलीन उसके साथ कपल करता था एक येलो कलर का डाई बनता था, एंड दैट येलो एजो डाई इज para-aminoazobenzene। ये कंपाउंड हमें कह रहे हैं किसमें नहीं बनता, इट मींस हमें para-aminoazobenzene देखना है किसमें नहीं बनेगा। बेटा आपने लिया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन पहला स्टेप है टिन एंड HCl। तो जब आप नाइट्रोबेंजीन में टिन एंड HCl डालोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी फॉर्म एनिलीन। आपको यहाँ NH2 आ गया है, एनिलीन में नाइट्रस एसिड डाल दिया। और नाइट्रस एसिड डालने का मतलब क्या था? डाइएजोटाइजेशन। नेचुरल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता, तो ये आपके पास बन गया डाइएजोनियम क्लोराइड। अब डाइजोनियम क्लोराइड में आपने फिर से एनिलीन डाल दिया, तो डेफिनेटली आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? यू विल गेट दिस कंपाउंड दैट इज para-aminoazobenzene। तो इसमें तो आपका कंपाउंड बन रहा है, आप कहोगे ये करेक्ट हो क्या? यहां पे देख लेते हैं, यहां पे पहले से ही NH2 है, आपने नाइट्रो कंपाउंड लगाया, ठीक है, नाइट्रेशन कर दी, और फिर आपने HCl एनिलीन, आपने एनिलीन के साथ रिएक्शन कर दिया इन एसिडिक pH, तो आप कहोगे इसमें भी बन जाना चाहिए था। नेक्स्ट इज ये कंपाउंड देख लेते हैं, नाइट्रो में सोडियम बोरोहाइड्राइड। बेटे सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन नहीं बना पाती। तो अगर मैं नाइट्रोबेंजीन में सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूंगी तो रूम टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसमें हीट कर दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों ही आपके पास कुछ ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट नहीं दे पाते, तो आप कहते हैं अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करो तो ये NHOH जरूर बन जाता है, यानी आपको कुछ ऐसा मिलने के चांसेस हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको देगा एजोबेंजीन, ये ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो आपको ये कंपाउंड्स मिलेंगे, ना कि आपको एनिलीन मिलेगा। और जब एनिलीन ही नहीं बना तो बिना एनिलीन के आगे फिर डाइएजोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा, आगे रिएक्शन नहीं हो सकता था। तो आंसर शुड बी कि बी में नॉट फॉर्म्ड वाला आंसर से बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो आंसर शुड बी 2।
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक ईथर का क्वेश्चन आ गया है, यानी ईथर लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। इट इज एन ईथर बट इट्स नॉट एन एरोमेटिक ईथर, यानी एनिसोल नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में ये सोच लिया कि इट इज एनिसोल। कहाँ एनिसोल? बेंजीन तो दिखा ही नहीं कहीं पर। अब ये जो मेथॉक्सी साइक्लो कंपाउंड है, इसमें आपने HCl डाला। बेटा ये HCl यहाँ डबल बॉन्ड पे क्या कर सकता है? इट कैन गो फॉर एडिशन, या फिर आप ये भी सोच सकते थे कि ये OH बन जाए और CH3Cl। लेकिन हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब में OCH3 को कुछ नहीं किया गया। चेक कर लो। तो पहले स्टेप में जब आपने OCH3 को नहीं हटाया है, इसका मतलब आप बचा है यही ऑप्शन कि मुझे HCl इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर बेटा मैं HCl इसमें ऐड करती हूँ तो मुझे मार्कोनिकॉफ रूल लगाना चाहिए, यानी आई मस्ट यूज मार्कोनिकॉफ रूल व्हिच इज बाइस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आप H और Cl ऐड कर रहे हो। अब मुझे कार्बोकेटाइन किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए? यानी एक पोजीशन मेरे पास ये है जिसमें मैंने एक 1 लिख दिया, और एक पोजीशन मेरे पास ये है जिसमें मैंने 2 लिख दिया। अगर मैं ऊपर वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आऊं तो मिथॉक्सी इसको स्टेबलाइज करेगा, लेकिन अगर मैं नीचे वाली यानी 2 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आऊं तो नाइट्रो उसको डीस्टेबलाइज करेगा। इट मींस पॉजिटिव चार्ज आपकी फर्स्ट पोजीशन पे ही आना चाहिए। अगर फर्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो Cl शुड गो टू द फर्स्ट पोजीशन। तो आपके पास Cl की एडिशन मैंने मार्कोनिकॉफ रूल से सोच ली। तो आई विल शो इट यू। नाउ लुक एट द आंसर। ये मेरे पास कंपाउंड है, मैंने आपसे कहा मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए। HCl डाल देते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आपका H पॉजिटिव इस पोजीशन पे जाता है तो आपका कार्बोकेटाइन वहां बनेगा जहां उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नजर आ जाएगा। Here you will get a carbocation, here is the hydrogen and nitro. अब मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए that must be, now I must say कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा that is going to be cyclohexane। आपके पास OCH3 है, यहाँ पे क्या लग गया मेरे पास Cl, और इस पोजीशन पे है नाइट्रो। ढूंढो जरा मेजर प्रोडक्ट 1 नाइट्रोस। ये ही हमारा सबसे पहले एक आंसर ठीक आ रहा है, ये हमारा गलत हो गया, ये आंसर नहीं है। दिस कैन बी द आंसर एंड दिस कैन बी द आंसर, सिर्फ एक रिजेक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम कहेंगे अगर मान लो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। नाउ वी वांट टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। मैंने इसके बाद अगला स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए लेट्स मूव। आपने क्या किया? आपने अगला स्टेप सोचा है, वो कैसे? सोडियम आयोडाइड। तो नेचुरल जो मेरा फर्स्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था, यानी जो आपका पहला मेजर प्रोडक्ट है, पहले मैं इसको ही ड्रॉ कर लूं। दिस इज Cl एंड इट इज नाइट्रो। अब मैंने सोडियम आयोडीन डाला। सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये कौन सी रिएक्शन थी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और आप सबको पता है हैलाइड्स में इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसपे आप कहते हो हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा। हैलाइड एक्सचेंज में ये Cl हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आयोडाइड। Cl की जगह पर आयोडाइड, Cl की जगह पर आयोडाइड। करेक्ट? डन? तो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is true? आपको एक ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी। इट इज अबाउट चैप्टर पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स में बूना N इज अ नेचुरल पॉलीमर, ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात है। ये तो सिंथेटिक पॉलीमर है, इसे किसने नेचुरल कह दिया? बूना N's मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो बेटा वहां पे पेरोक्साइड चाहिए होते हैं, तो पेरोक्साइड से बूना N बनाते हैं। पूरा पेरोक्साइड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन। तो आप कह सकते हो ये ठीक स्टेटमेंट नजर आ रही है। नियोप्रीन इज एडिशन कोपॉलीमर, इट्स नॉट अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर नहीं होता वो। नियोप्रीन क्या होता है? इट इज अ सिंपल होमोपॉलीमर। नियोप्रीन किससे बनता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरोप्रीन। तो आप कहते हो नियोप्रीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरोप्रीन। तो आपके पास ये यहाँ पे क्लोरोप्रीन है मेरे पास, 2-क्लोरोब्यूटाडाइन, इसका पॉलीमर है वो। तो कोपॉलीमर नहीं है, बकेट फॉर्मेशन में यूज कर सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बूना S इज अ स्ट्रेट लीनियर पॉलीमर एंड इज थर्मोसेटिंग। यहां गड़बड़ कर दी, क्योंकि बूना S थर्मोसेटिंग नहीं होता, इट इज थर्मोप्लास्टिक।
तो आप कहोगे ये भी नॉट ट्रू हो गया, आपका स्टेटमेंट जो बिल्कुल ट्रू आ रहा है वो बन रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। इट्स फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से देखते तो आपको ये क्लियर हो जाता कि ये क्वेश्चन गुना एस गुना एन पे था। Next we have is quantities plotted on y and x axis on Allingham diagram R. Allingham diagram यानी चैप्टर मेटलर्जी। बेटे कमाल की बात ये थी कि इस बार जो टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स में से डिलीट कर दिए गए थे उनमें से काफी क्वेश्चंस आपके मेंस के पेपर में आए। फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ, वो फॉर बोर्ड एग्जाम यानी जो बच्चे +2 के पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट थोड़े मुश्किल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो चैप्टर सोचा था कि बोर्ड में नहीं आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में डिलीट हो गए, हो सकता है एनडीए भी ना डाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार का ये जो पेपर हुआ है, इस बार जो शिफ्ट थी वो ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल थी, क्योंकि उन्होंने वो चैप्टर्स कर रखे थे जो +2 के स्टूडेंट्स ने नहीं किए थे। अब देखो जरा एलिंगम डायग्राम किस चैप्टर में था? इट इज इन मेटलर्जी। और मेटलर्जी में जब हम एलिंगम डायग्राम की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम इसमें डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर का प्लॉट लेंगे। यहां मैंने टेम्परेचर लेना है और ये मैंने 0 वैल्यू ले ली, इस तरफ मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, नीचे हम टेम्परेचर को साथ साथ प्लॉट कर रहे हैं। तो डेल्टा जी वर्सेस टी, इट इज एलिंगम डायग्राम जिसमें मेटल ऑक्साइड्स के लिए ऐसा एक डायग्राम बनता है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ M2OX। तो आपके पास जब हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर हैविंग दिस टाइप ऑफ डेल्टा जी कर्व दैट इज इन एलिंगम डायग्राम, तो एलिंगम डायग्राम इज बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर that is going to be there. Now next question is about solubility of AgCN in a buffer of pH 3 is x given. आपसे पूछ रहे हैं what is the value of x, आपको x बताना था। It's a good question और इस question में calculations involved थी, लेकिन calculations में ये काफी दूर दूर सी नजर आ रही है, सिर्फ ये दो काफी पास है और यानी -16 होने के चांसेस काफी कम। देखो सॉलिबिलिटी कभी भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वल तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है, एक तो हमने बिल्कुल ही डिलीट कर दिया। उसके बाद अगर मान लो मैं केएसपी से ही सॉल्व करूं तो मुझे ये समझ आता है कि एजीसीएन जो आपके पास है Ag1 पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, तो हमें पता है KSP इज गोइंग टू बी S², तो आपके पास ये आ जाएगा 2.2 10 raised to power -16 is equal to S². S comes out to be root of this value 2.2 10 raised to power -16। ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था मुझे। अब वैसे भी इस बफर का कुछ तो करना होगा, ऐसा तो नहीं है कि इसको ऐसे ही दे दिया होगा, और ऊपर से हमें HCN का कांस्टेंट भी दिया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको स्टार्ट कैसे करना था, पहले तो आप देखो जरा AgCN ये हमारे पास है और हमने इसको लिख लिया Ag1 पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, ये हमारा एक पार्ट बन गया। इसमें आपको KSP गिवन है। दूसरा हमारे पास है HCN। अगर मैं आपसे बोलूं कि HCN जो है वो डिसोसिएट करेगा टू गिव अस H पॉजिटिव एंड साइनाइड, तो इसका Ka मुझे गिवन है। अब क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन में H पॉजिटिव दिख रहा है और साइनाइड जो है ये अगर कैंसिल हो जाए तो मैं सिल्वर की टर्म में KSP निकाल सकती थी, तो मैंने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। आई विल जस्ट टेक इट एज H पॉजिटिव प्लस साइनाइड, इट इज गोइंग टू गिव अस HCN। अब ये बन जाएगा 1/Ka। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, जरा इन दोनों को ऐड करते हैं, जब रिएक्शंस ऐड होती हैं तो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेट्स डू इट। आपने इन दोनों को ऐड किया, किस को, फर्स्ट इक्वेशन को और इस थर्ड इक्वेशन को, दीज टू आर बीइंग एडेड। ये आपके पास बन गया है AgCN प्लस H पॉजिटिव गिव अस Ag1 पॉजिटिव प्लस HCN। कांस्टेंट कितना आ गया? इट इज नाउ KSP डिवाइडेड बाय Ka। इस रिएक्शन में अब आपके पास जो KSP बाय Ka है इसको जरा लिख लेते हैं। इसको जब मैंने लिखा तो ये बनेगा Ag1 पॉजिटिव इनटू HCN कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन।
AgCN क्योंकि 1 माइनस एक्स होगा और इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ जाएगा, हम इसको इग्नोर कर देंगे। ये कांस्टेंट आपके पास आ चुका होगा क्योंकि आपने इन दो कांस्टेंट से यूज कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें ये समझ आ रहा है कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि आपको पीएच दिया हुआ था। अब बेटा pH3 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज pH3? हम कहेंगे pH3 means H positive ion concentration is 10 raised to power minus 3. Now we can put HCN concentration divided by 10 raised to power minus 3. अब HCN क्योंकि कॉमन आयन क्रिएट कर रहा था साइनाइड के लिए, तो आप कहते हो साइनाइड HCN की कंसंट्रेशन काफी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो वी कैन मेक इट एज X अगेन। HCN भी आपको X साइनाइड ही देगा, तो X square upon 10 raised to power minus 3 is equal to 2.2 into 10 raised to power minus 16 divided by 6.6 into 10 raised to power minus 10। ये आपका आंसर बन गया। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? What we can calculate? X can be calculated। तो आप देखो जरा, -3 है, 16 और 10 ये बन गया -6, -3 जाएगा तो -9, 1/3, 10 raised to power -9 is equal to x square। x क्या आ जाएगा? इसका रूट। अब मुझे दिख रहा है 10 raised to power -9 का स्क्वायर रूट 10 raised to power -4.5 होगा। 10 raised to power -4.5 इस ऑप्शन में मुझे मिलता नजर आ रहा है, तो आई मस्ट मार्क दिस। ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता था, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी बना। So we can say that now we are having question discussed over here from which topic? आप कहोगे this is from the topic that is called equilibrium. Next question is from boron family, यानी chapter +1 boron family। P block +1 में आपने क्या था? डाइबोरेन। तो क्वेश्चन डाइबोरेन से आया है। डाइबोरेन वो कंपाउंड था जिसका जब स्ट्रक्चर कराते थे तो आपको साफ कहते थे वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, बनाना बॉन्ड इज देयर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। हम आपको कहा करते थे बीच में 2 ब्रिज्ड हाइड्रोजन्स आ जाएंगे B2H6 में, और 2 हाइड्रोजन्स पेपर पे होंगे और 2 हाइड्रोजन्स एक पेपर के पीछे चला जाएगा और एक पेपर के आगे चला जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 अगेन sp3, और यहाँ पे जो एंगल्स थे, यानी अगर मान लो ये एंगल मैंने अल्फा या A ले लिया और ये एंगल मैंने B ले लिया, तो ये एंगल आपके पास सारे बराबर नहीं होते थे। These angles are not equal। अब आपके पास BH3 is a Lewis base, ये तो गलत है, it is a Lewis acid, क्योंकि आपको पता है BH3 की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरॉन खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। External BH bonds have less p character। BH-B bonds are not identical, all bond angles are 120, ये भी गलत हो गया। अब external BH bonds have less p character, एक्चुअल में p कैरेक्टर नहीं s कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता था। तो अब आपके पास ये समझ आ रहा है कि सारे बॉन्ड्स जो हैं क्या वो आइडेंटिकल होंगे। तो आपको B2H6 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यानी यू आर गोइंग टू टेल कि बोरॉन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो हम कहेंगे BH में, यानी ये वाले बॉन्ड्स जो हैं इसका एंगल क्या है? B एंगल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है विद A, ये एंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि आपने रिंग बनाना है। रिंग में एंगल क्या होता है? छोटा हो जाएगा ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ आपके पास एंगल थोड़ा एक्सपैंड करेगा। तो जिसका एंगल बड़ा है बेसिकली उसमें S कैरेक्टर कम है, हम इसको S कैरेक्टर से देखें तो मैं कहूंगी हियर मोर S कैरेक्टर। इंटरनल में आपका S कैरेक्टर ज्यादा होता है, एक्सटर्नल में S कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। तो आप कहते हो S कैरेक्टर और P कैरेक्टर से कंपेयर करें, तो नाउ वी कैन से दैट in this case this is going to have more S character less P character that is there in diborane। ये आपका ऑप्शन बन सकता था। Bonds are not identical, BHB, सारे के सारे बॉन्ड्स जो है कौन कौन से? BHB, क्या ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं होते? तो आप कहोगे ये दोनों बॉन्ड्स क्या होते हैं? These two are identical bonds, क्योंकि ये तो बनाना बॉन्ड्स थे ना, आप ऐसे बनाया करते थे। These two are banana bonds, 2 electron 3 center bond।
नेचुरल बेटे आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है, अब आपको क्लियर हो गया कि बोरोन में से अब हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है, तो नेचुरल है नेक्स्ट शिफ्ट्स में ये आपको बोरोन में से अगर कुछ पूछना हो तो बोरिक एसिड या बोरेक्स के बारे में क्वेश्चन आएगा। अब वो डाइबोरेन से क्वेश्चन ना पूछ के किससे पूछेंगे आपका क्वेश्चन? दे विल आस्क फ्रॉम बोरिक एसिड और बोरेक्स। Next question we have is which of the following probability curves, distribution curves are correct for 3s orbital? तो probability distribution curve में आपके पास यहाँ पे आप लेते थे 4 pi r square psi square, तो 4 pi r square psi square versus r, ऐसा एक ग्राफ बनता था, सेम दिया हुआ है बेटा। यहाँ पे जितनी हाइट्स है, जैसे ये एक बना तो ये 1s का कर्व है, अगर मुझे 2s का कर्व बनाना हो तो मैं कहूंगी यहाँ पे दो मैक्सिमाज आएंगे, दिस इज फॉर 2s। और अगर मुझे 3s का कर्व बनाना होता तो I must say that how many maximas should be there? 3 maximas. The number of maximas in distribution curves are equal to n for s orbitals. तो ये आपका ग्राफ 1s का है, 1 2 3, ये 3s का कर्व है, तो आपके पास यहाँ पे 3s का कर्व आ चुका था, तो आपका आंसर बन गया सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे ये किसका ग्राफ होगा? 2s, एंड दिस इज नॉट फॉर 3s, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ऐसी शेप हमारे पास किसकी होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व की होती है। अगर मैंने साई स्क्वायर वर्सेस r प्लॉट किया होता तो ऐसा ग्राफ बनता है, डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी कर्व्स। तो ये ग्राफ गलत है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होते हैं उनमें हमेशा हाइट बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे बनाना पड़ता है। दिस इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आर ड्रॉन। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। In which of the following reactions hydrogen peroxide is acting as an oxidizing agent? रिएक्शंस आपके सामने है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी की ऑक्सीडेशन करना है। ये I नेगेटिव है और दिस इज I2, इसका मतलब 1 नेगेटिव से 0 में कन्वर्ट हुआ, I नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड, तो करेक्ट यही आपका आंसर बन जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। 0 to -1 रिडक्शन कर रहा है। Here hydrogen peroxide is a reducing agent. HOCl chlorine +1 से -1 again reducing agent. Iodine +7 to -1 again reducing agent. Your correct answer is first option where H2O2 act as an oxidizing agent. Chapter hydrogen. This question is there. Now next question is which of the following ion pairs have same outermost configuration? यानी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में से दूसरा क्वेश्चन है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक से भी। तो ट्रांजिशन मेटल्स दिए गए हैं आपको हैविंग सेम आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं जरा क्रोमियम 1 पॉजिटिव, क्रोमियम 1 पॉजिटिव आएगा 4s0 3d5। मैंगनीज 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव भी आपके पास आ जाएगा 4s0 3d5। ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक बन गया था। फिर भी चेक कर लेते हैं। वेनेडियम 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव 23 एटॉमिक नंबर, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d3 इज लेफ्ट। और कोबाल्ट 1 पॉजिटिव, कोबाल्ट 1 पॉजिटिव सेम नहीं दे पाएगा, नेचुरल है 4s2 3d7, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s1 3d7 आएगा। दिस इज नॉट सेम, ये तो आंसर नहीं है मेरे पास। आयरन 2 पॉजिटिव 3d5 होता है और ये तो मैंने अभी बताया 3d7 आ रहा है, ये नहीं है। निकल 2 पॉजिटिव इज 3d8 एंड कॉपर 1 पॉजिटिव इज 3d10, अगेन नॉट सेम, तो आंसर शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज हियर। Let's move on to the next question. Which of the following is not possible according to molecular orbital theory? Chemical bonding important chapter और इसमें से वो MOT में से क्वेश्चन पूछ रहा है। Examiner wants to know that कि आपके पास which of the following is not possible, कौन सा possible नहीं होता? तो हम कहते हैं बेटे bond order जब 0 आ जाए तो molecule will not be possible. जीरो बॉन्ड ऑर्डर तो आप कहते हो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पे जीरो बॉन्ड ऑर्डर वाला एलिमेंट चाहिए था यानी मॉलिक्यूल, तो आप कहोगे जीरो बॉन्ड ऑर्डर बेरिलियम 2 का होता है,
हमारे पास बेरिलियम 2, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, स्ट्रोंशियम 2, all these are having bond order 0. Same way अगर आपके पास हीलियम 2 आ जाता, नियॉन 2, आर्गॉन 2, all these are having bond order 0. तो bond order 0 आपके पास सिर्फ किन में नजर आता है, ग्रुप 2 में और ग्रुप नंबर 18 में. तो ये 0. बेटा O2 2 नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1. Helium 2 1 negative, bond order is 0.5. 1 positive, bond order is 0.5. 0 नहीं आ रहा था, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, which is going to be beryllium 2, bond order 0. Next question is, आपके पास है CeO2. CeO2 is सीरियम. सीरियम को जब आप O2 लिखते हो तो इसका मतलब आप कह रहे हो +4. अब सीरियम अगर +4 है तो बेटा सीरियम 4 से सीरियम 3 में जाना चाहेगा, खुद की क्या करेगा, रिडक्शन. इफ इट इज गोइंग फॉर सेल्फ रिडक्शन तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आप कहोगे ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज पावरफुल देन इवन KMnO4. यानी आप ये मान सकते हो कि आपका जो एल्डिहाइड कीटोन है वो KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता था और सीरियम उससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इनको ऑक्सीडाइज कर देगा. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देन इज यूरोपियम सल्फेट EuSO4 लिखा हुआ है, ये भी इनर ट्रांजिशन का ही क्वेश्चन था. बेटा Eu2 पॉजिटिव है क्योंकि आपने सल्फेट लिखा हुआ है. अब क्योंकि इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 3 पॉजिटिव. अगर ये खुद को 2 से 3 में कन्वर्ट कर रहा है, खुद की क्या करेगा बेटे, ऑक्सीडेशन. जब खुद की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है. इट मींस बोथ आर करेक्ट, दैट शुड बी द आंसर. अगर हम इसका आंसर मार्क करें तो हमारे पास आना चाहिए बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. गुड क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांजिशन इन अ ट्रांजिशन मेटल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज MnCN6 4 negative and FeCN6 3 negative hybridization and एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है और आपसे पूछा गया मैग्नेटिक नेचर ऑफ 1 and 2. CN6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल. अब आपके पास मैंगनीज का पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं. मैंगनीज कम्स आउट टू बी 2 पॉजिटिव. x - 6 = -4 x2. ये बन जाएगा 4s0 3d5. 4s0 3d5 आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग कर जाएगा 3d5 लाइक दिस. अब आप कहोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या बननी चाहिए, इट शुड बी D2sp3 1 2 3 4 5 6. It should be D2sp3 hybridization in manganese complex. एक तो हमारे पास D2sp3 यानी ये ऑप्शन नजर आ रहा था. इसमें चलते हैं. इसमें आपके पास आयरन आ रहा है 3 पॉजिटिव. When I say iron 3 positive, it is 4s0 3d5. अब 3d5 है, अगेन सेम सिचुएशन है, साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो ये भी क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक. बोथ आर पैरामैग्नेटिक, बोथ आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. आंसर शुड बी D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो आप हो गए 18. यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका आंसर आपको मिल गया है. Now we move on to the next question. According to Freundlich adsorption isotherm chapter surface chemistry, very important, surface chemistry का एक अच्छा क्वेश्चन है ये. और ये पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने कभी सॉल्व करके गए हो, यानी अगर आपके टीचर्स ने आपको कहा था कि बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स 1 2 4 5 7 सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाया करते हैं, तो ये वैसा वाला क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. इस आइसोथर्म में हम कहते थे x/m is equal to k p⁻1/n. और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ log of x/m तो हमें लिखना पड़ेगा log k plus 1/n log p. आपसे कह रहे हैं at moderate pressure x/m is proportional to p⁻x. ठीक है जी.
x क्या होता है, तो आपको कहते हैं x by m is proportional to p raised to power x, यानी इसको कह रहे हैं x की तरह ना लिख लो, k p small x ही कर दिया, तो x क्या है, it is 1 by n। ये क्वेश्चन जब पहले आया था तब उन्होंने स्लोप पूछी थी, they have asked कि अगर हम log x by m versus log p प्लॉट कर दें तो आपके पास ग्राफ कैसा आएगा, पॉजिटिव, स्लोप क्या आएगी 1 by n, इंटरसेप्ट क्या आएगा log k। इससे पहले जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें ग्राफ और उसकी स्लोप पूछी गई थी। This is question from surface chemistry, we have done with this question. Now next question we have is, let's move on to the next question. Now 1.8 grams CXHYOZ compound on combustion gives 2.64 grams CO2, 1.08 grams of water. Find out mass percentage of oxygen in this compound. Question is from hydrocarbons and its estimation of hydrocarbons. यानी आपके पास टॉपिक था परसेंटेज कैलकुलेशन या फिर डिटेक्शंस, केरियस मेथड, लिबिग्स मेथड, ये उसमें से क्वेश्चन खाया गया था। आप इसे मोल कॉन्सेप्ट का भी कह सकते थे। अब हम ये कह सकते हैं ये मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अबाउट वाटर। पहले जरा देखते हैं बेटा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल W वो मेरे पास है 1.8, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन 2.64 grams। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12, कार्बन इज 12 by 44 into weight of carbon dioxide divided by weight of organic compound into 100। ऐसे जब मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो आपके पास वेट ऑफ वाटर गिवन था, इट इज 1.08 grams, तो आप होगे 2 by 18 into 1.08 by 1.8 into 100। आपने यहां से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल ली। आपसे पूछा था व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको पता है कंपाउंड में तीन ही चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मेरे पास कार्बन की परसेंटेज भी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी है और फिर मुझे ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, आप कहोगे इट इज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आप इन दोनों को प्लस करके यहां से 100 में से माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर बन जाता। तो दिस इज द क्वेश्चन ओवर देयर। हमें इसमें क्या करना था बेटे, ध्यान से देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है तो 12 by 44, तो मुझे इस फॉर्मूला से मिल गया था 12 by 44 into weight of CO2 divided by total weight। अगेन वाटर से 2 by 18 into weight of water upon weight of organic compound। कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज निकाल लिया, ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर कैलकुलेट की थी तो ये सॉल्व हो के आ रहा था 53.3%, यानी your answer should be 2। Next question. Now when we move on to the next question out here, so it is going to be, अब आपके पास इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आ रहे थे, यानी वो क्वेश्चंस जिनमें आपको 10 में से 5 करना था, यानी you are going to have an option कि आपके पास बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है, आप इसमें से कुछ क्वेश्चन करोगे, कुछ नहीं करोगे। जो बिल्कुल श्योर हो वही करना चाहिए क्योंकि आपको 5 ही अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स अगेन, एसिटिलीन व्हेन पास थ्रू रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब, तो ये बन जाता है बेंजीन। एसिटिलीन व्हेन पास्ड थ्रू रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब वी गेट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। और बेंजीन में फिर आपने डाल दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये बन गया गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में बेंजीन के ऊपर कार्बोनिल अटैच होगा, यानी यू विल गेट COH। अब जब ये लग जाएगा तो आपको पूछा क्या गया था कि आपके पास कितने sp2 हाइब्रिड कार्बन होंगे। अगर ये वाला ऑप्शन ना लिखा होता, 2 ना लिखा होता तो 6 आपको भी सारे कार्बन sp2 है, लेकिन अब आपके पास 6 के बाद ये जो कार्बन है ये भी sp2 है,
It means 6 plus 1, 7 carbons are sp2 hybridized. Your correct integer answer is sp2. तो आपका आंसर बनना चाहिए था 7 carbons are going to be sp2. Next question is from chromatography. Chromatography से last to last year भी question आया था और this year again a question is here. ये आपसे पूछ रहे हैं what is the retarding factor of A. रिटार्डिंग फैक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो रिटार्डिंग फैक्टर होता है कि ये आपकी वो स्लाइड है, ग्लास स्लाइड. ए ने बॉटम से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि सॉल्वेंट ने बॉटम से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया. बी ने 4 सेंटीमीटर ट्रेवल किया. वो आपसे कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए जितना भी है divided by distance traveled by solvent. अगर ये रेशियो ले लो तो ये आपका रिटार्डेशन फैक्टर आ जाता है. तो नेचुरल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कितना था बेटे 2 और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट कितना आ रहा था 5. 2 by 5 is your answer. 2 by 5 is 0.4. अब इस क्वेश्चन में नेचुरल अब आपको रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला ही याद करना था. अब बी का अगर पूछा होता तो 4 by 5 आंसर होता. तो 2 by 5 4 by 5 this can be the option. आपको क्योंकि a का पूछा है तो आंसर is 2 by 5 यानी 0.4 is the correct answer. Now next question. How many of the following do not hydrolyze? आंसर है SF6. अब आपको कैसे पता चलेगा कि SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता है? तो पहले जरा कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं. बेटे SiCl4 में सिलिकॉन के पास 6 बॉन्ड्स की कैपेसिटी है और 4 उसने बना रखे हैं. जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो यू विल गेट कि ये सिलिकॉन जो है सबसे पहले स्टेप में 4 क्लोरीन के साथ तो बॉन्ड बना ही चुका है, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर स्टिल देयर. तो वाटर के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और इससे वो हाइड्रोलिसिस शुरू कर पाएगा. हाइड्रोलिसिस की कंडीशन ये है कि पहले वाटर अटैच हो जाएगा. अगर वाटर अटैच हो गया फिर उसके बाद HCl बाहर, यानी अगर मैंने यहाँ पे वाटर लगा दिया, एक Cl फिर 4 Cl थे हमारे पास और अब आप H और Cl हटा दोगे. इन दिस वे सिलिकॉन पे OH लग जाएगा. तो आप कहोगे धीरे धीरे सिलिकॉन पे कितने OH आ सकते हैं 4 OH. तो हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल इन SiCl4. यहां से वाटर निकाल दोगे तो विल गेट आंसर. तो ये तो हाइड्रोलाइज हो सकता है. PCl5 में भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है क्योंकि PCl6 नेगेटिव तक बनता है. 6 बॉन्ड्स ये भी बना सकता था, 6 बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी है. एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर देयर. तो आप कहते हो PCl5. आपने ये रिएक्शन वैसे भी किया था. वी हैव PoCl3 प्लस HCl और फिर आप कहते हैं एक बार फिर से रिएक्ट करवा दो. अगर दोबारा से वाटर से रिएक्ट करेगा तो वी गेट H3PO4. फाइनली फॉस्फोरिक एसिड इज फॉर्म्ड. तो दिस इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड. अब SF6 में सल्फर 6 बॉन्ड्स बना सकता था. 6 ऑलरेडी बन चुके हैं. अब वाटर इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्राउडिंग हो गई है, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा. जबकि BF3 में अगर हम वाटर ऐड करें तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है. वी गेट H3BO3 प्लस HF. तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस हो सकती थी. तो which one cannot be? Do not hydrolyze only one, SF6. That is the answer. Now we move on to the next question. Next integer type question आपके पास था from chapter solutions. Solution में इस बार जो शिफ्ट्स हुई हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, हर बार solution का क्वेश्चन उन्होंने इंटीजर में ही पूछा है. तो अब solution में A2B3 is 60% ionized. तो अल्फा हो गया 0.6. 1 मोलर मोलालिटी आ गई 1. Kb is given 0.52. That is also given to you. आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी डेल्टा Tb नहीं, आपको बेसिकली Tb निकालना है. अब आपको डेल्टा Tb क्या होता है? इट इज I Kb m. I फैक्टर अगर आ जाएगा, Kb हमारे पास है, मोलालिटी भी हमारे पास है. नाउ I फैक्टर इज, बेटे I फैक्टर हियर इज 1 माइनस अल्फा प्लस जितने आयंस बनेंगे A2B3 में 5 आयंस बनेंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 5 अल्फा. इट मींस ये बन जाएगा 1
1 plus 4 alpha. 1 plus 4 into 0.6. It is 1 plus 2.4. That means 3.4. तो आपका I factor आ गया 3.4 into 0.52 into 1. ये आपका आंसर बन गया डेल्टा टीपी. और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? पानी के केस, वाटर के केस में क्या कहते हैं? 100 प्लस डेल्टा टीबी इज योर आंसर. ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये अगर सॉल्व करके 1.768 आ रहा हो तो आपको ये बन जाएगा 101.768. तो दिस कैन बी द आंसर. तो आपके पास ये बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया था. कुछ बच्चों ने सारा क्वेश्चन ठीक किया लेकिन डेल्टा टीबी लिख के आ गए. पूछा तो बॉइलिंग पॉइंट था, डेल्टा टीबी थोड़ा ना लिखना था. Now next question, a tire containing nitrogen has 35 psi at 27 degrees Celsius. At what temperature pressure will be 40? Naturally nitrogen gas है, pressure P1 given है, temperature T1, P2 given है, temperature T2. Question solve हो रहा था Gay-Lussac's law से P1 by T1, P2 by T2. अगर आप ये लॉ लगा लेते तो आपके पास सारी वैल्यूज थी. P1 था 35, T1 आपके पास है 300, P2 आपके पास गिवन था 40 और T2 आपका क्वेश्चन था. आपने इसे सॉल्व कर लेना था 35 by 300, 40 by T2. T2 you can calculate. जो आंसर आएगा वो केल्विन में होगा और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना था. वो आपके पास आंसर बन जाएगा. ये अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा हुआ है, वहां पे 69 पॉइंट समथिंग आंसर बनेगा. तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 25 जो भी इस पेपर में बना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्रोमेट एंड थायोसल्फेट गिव सल्फेट एंड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड. ये क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देख के समझ आ रहा था कि डायरेक्ट फार्मूला लगा दो N1 V1 N2 V2. बच्चों ने यहाँ फार्मूला लगा दिया M1 V1 is equal to M2 V2 और गलत हो गया. वो ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ही मोलैरिटी देते हैं. यहाँ पे नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाओगे बेटे. क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है. कितने का गेन हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन्स का. आप हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन एन फैक्टर. सल्फर यहाँ +2 है, यहाँ पे +6, तो लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन. 2 सल्फर है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी. तो अब आपके पास नॉर्मलिटी ऑफ क्रोमेट 0.154 into 3 into V is my question. Then is 0.25 into 8, right? क्योंकि इसका n फैक्टर कितना आ रहा था 8 into 40. And what we want to calculate is V. यहां से आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे. That is your option. Easy question था लेकिन थोड़ा सा सोचने के लिए. Easy question करना ज्यादा मुश्किल हो गया था यहाँ पे क्योंकि वहां पे मोलैरिटी दे दिया. सबने M1 V1 M2 V2 लगा दिया. क्वेश्चन गलत ही होना था. Now let's see the next question. अब आपके पास है डेल्टा H निकालना है, डेल्टा U दिया हुआ है. थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट. ये थर्मोडायनामिक्स में से सेकंड क्वेश्चन. इलिंगम डायग्राम भी पूछा उन्होंने और इस क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछना चाह रहे हैं? They want to know that कि आपको डेल्टा H का ये फॉर्मूला आता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. और ये फॉर्मूला सबको आता है. डेल्टा U कितना है? -744.24 किलो जूल्स में है. डेल्टा Ng कितना आएगा बेटे? 2 मोल्स -3/2 यानी डेल्टा Ng is 2 - 3/2. लिक्विड्स और सॉलिड के मोल्स को कंसीडर नहीं करते हैं हम. R की वैल्यू आप लगाओगे 8.314/1000. 298 टेम्परेचर दिया ही हुआ था आपके पास. ये सॉल्व करके आपका डेल्टा H आ जाएगा एंड दैट विल बी योर ऑप्शन. यहाँ पे आ रहा था 743. तो आपके पास नेचुरल -743 आया होगा लेकिन आपके पास नेचुरल हमें आंसर में साइन नहीं लगाना था. तो योर मैग्नीट्यूड इज 743. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज enthalpy of formation of sodium to sodium 1 positive is given.
that of bromide to Br2 is also given. Lattice energy is also given. Determine formation of NaBr is -x. तो आपको x निकालना है. Okay. Sodium plus Br2 gives NaBr. ये हमारे पास फॉर्मेशन का रिएक्शन है जिसकी वैल्यू आपको दे रहे हैं डेल्टा H फॉर्मेशन x माइनस x. आपसे कह रहे हैं x निकाल दो. इसको बैलेंस कर लेते हैं. फॉर्मेशन की कंडीशन ये होती है कि 1 मोल ही बनाना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इटसेल्फ, यानी 1 मोल कंपाउंड इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स. तो आपने 1 मोल NaBr बनाना था. ये हमारे पास रिएक्शन था. इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना चाहिए था फ्रॉम with the help of, you can say, Born-Haber cycle, right? तो आपसे कह रहे हैं enthalpy of formation of sodium to sodium 1 positive. ये आपके पास यहाँ से सीधा ही वो कह रहे हैं Na1 positive gaseous बना लिया है. तो ये पूरी वैल्यू उन्होंने आपको दे दिया 426.4 किलोजूल. ब्रोमीन लिक्विड से सीधा आपके पास वो कह रहे हैं Br नेगेटिव तक जाने के लिए हमारे पास वैल्यू है -325. अब इन दोनों आयंस ने आपस में पैकिंग किया और ये बन गया NaBr सॉलिड. तो नेचुरली लैटिस फॉर्म्ड, तो लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड. लैटिस एनर्जी आपके पास है -774.8 किलोजूल, राइट? अब नेचुरली ये पूरा प्रोसेस है. कौन सा लॉ लगाएंगे? हमने बॉर्न-हैबर साइकिल यूज किया है. हेसेस लॉ का क्वेश्चन है और ये थर्मोडायनामिक्स में से इस पेपर में तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रेम चैप्टर. अब आप देखो, आपको बताइए क्या करना है. डेल्टा H फॉर्मेशन किसके इक्वल आएगा? दिस इज फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इन तीनों का टोटल. तो आप होगे 426.4. Then you have plus -325 plus -774.8. आप इसको सॉल्व करते हैं तो you will get your answer. तो ये आपके पास 673.4 आ रहा है और ये आंसर अगेन नेगेटिव आया होगा. फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, लेकिन हमें क्योंकि आंसर्स में मैग्नीट्यूड दिखाना था तो आंसर इज देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम काइनेटिक्स. अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, लेकिन देखने में मजेदार क्वेश्चन था. डिफिकल्ट सा, डिफरेंट सा क्वेश्चन था. वो आपसे कह रहे हैं एक रिएक्शन दे दिया log K वर्सेस 1/T, यानी आर्कीनियस इक्वेशन यूज कर लिया. अब आर्कीनियस इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो आर्कीनियस इक्वेशन में आपको ये सारा दिख जाता है कि K -EA/RT हम यूज कर रहे हैं. अब आपके पास स्लोप गिवन है. हमें बताइए कि अगर हम log K वर्सेस log A -EA/2.303 RT लिखते हैं तो K और 1/T का जो ग्राफ है उसकी स्लोप आती है -EA/2.303. तो नेचुरली आपके पास एक वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है जिसको आप सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. तो स्लोप आपको मिल गई थी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई. रेट कांस्टेंट K at 500 Kelvin is given and we want to calculate K at 10⁻⁻4. टेम्परेचर निकालना है जब K 10⁻⁻4 हो जाएगा. तो K1 आपके पास है 10⁻⁻5, K2 आपके पास है 10⁻⁻4, T1 आपके पास गिवन था 500 केल्विन और T2 दैट इज योर क्वेश्चन. अगेन आर्कीनियस इक्वेशन का सेकेंड पार्ट आप यूज करोगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला पार्ट. log K2/K1 is equal to EA/2.303 R 1/T1 which is 500 minus 1/T2 which is to be calculated. बेटे log K2/K1 तो गिवन ही था. K2 हमारे पास 10⁻⁻4 -5 तो log 10 आ जाएगा. log 10 1 होता है, ये तो सॉल्व हो गया. ये पूरी वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 10,000.
अब बचा है 1/500 माइनस 1/T2। आई डोंट थिंक अब इसमें कोई कैलकुलेशन की मुश्किल आने वाली थी। आप यहाँ से T2 कैलकुलेट कर सकते थे, दैट कैन बी डन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता 29। अब आपके पास नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। तो अब हमने जब क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं तो अब हमें ये समझ आ रहा है इट्स मेमोरी बेस्ड प्रोसेस बेटा, क्योंकि पेपर बाहर नहीं आता है तो पेपर अब बच्चों की मेमोरी से बाहर आ रहा है। यानी कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन बता दिया, किसी ने दूसरा क्वेश्चन बता दिया, एंड वी came to know about all these questions are there in shift 1 of February 25th। अब इन क्वेश्चंस को जब हमने डिस्कस किया तो हमें एक पर्टिकुलर टाइप समझ आ रही है। इट मींस अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट यानी मार्च में या अप्रैल में दोबारा अटेम्प्ट देने वाले हो तो ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक हेल्प मिल जाएगा which type of question can be there in your exam, and that is must for you, because if you know the content but you don't know how to attempt, आपके अटेम्प्ट में आपको डर लगता है, क्वेश्चन करते हुए आप घबरा गए थे, पैनिक आ गया था, तो आपका आंसर गलत हो गया था, राइट? नाउ इन द सेकंड अटेम्प्ट यू मस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड यू शुड प्रैक्टिस इवन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको देखा है प्रीवियस ईयर में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान दो सो दैट आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में आपका परसेंटाइल इट शुड बी अबव 96 या 95 से ऊपर चला जाए, ताकि आपका NITs आपके पास कंफर्म्ड हो जाए। then we can prepare well for advanced exam and you can attempt your paper on practice papers you can have with us in on Vidya Samastha app. We are preparing so many tests, we have prepared, mock tests are prepared for you, those papers you can attempt free of cost for you। आपने सिर्फ अपना रोल नंबर बताना है, रजिस्टर करना है और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाना है। सॉल्व्ड विद सॉल्यूशन आपको पेपर मिल जाएंगे सो दैट आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट एक वंडरफुल अटेम्प्ट रह जाए एंड यू शुड परफॉर्म वेरी वेल। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास।